Hello students, welcome to my channel Isn't It Easy. So today's topic is real numbers from the chapter 1 number system of class 9th mathematics. Now to understand the concept of real numbers, we must understand that they are broadly divided into two categories, that is rational numbers and irrational numbers. Now to understand first of all rational numbers, we will start from here. As you all can see, this smaller circle, or I will say this smaller elliptical circle, is natural numbers. So you all have learned and heard about natural numbers in the junior classes also. So all the numbers starting from 1, 2, 3, 4 and so on, they all are called natural numbers. So all the natural numbers are rational numbers. First point. Fine. अब हम आगे बढ़ते हैं. Now the next elliptical circle is whole numbers. So all the numbers from 0. Now what we have added? 0, 1, 2, 3 and so on. All these numbers are called whole numbers. They are called whole numbers because they are starting from 0. So all the natural numbers are whole numbers. You are linking it like that. All the natural numbers are whole numbers. Now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं. अब आप देखिए इंटीजर्स. किसको देख रहे हैं अब आप? इंटीजर्स. जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, then we say integers can be negative, integers can be पॉजिटिव. तो जब मैं इंटीजर्स की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर -2, 0, 4.5, इनफैक्ट √49, ये सारे इंटीजर्स है. मैम √49 इंटीजर कैसे? तो √49 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 49. आप सबको पता है 49 किसका स्क्वायर है? 7 into 7. अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालती हूँ, what I get? 7. So 7 is a integer, therefore √49 is also a integer. So now let's link it. All the natural numbers are whole numbers. All the whole numbers can be integers. Now integers can be negative, integers can be positive. Now finally let us come to the rational numbers. All the numbers which can be represented in the form of P upon Q. I am repeating it. All the numbers that can be represented in the form of P upon Q, they are called rational numbers. They are called rational numbers. So all the natural numbers, all the whole numbers, all the integers, they all belong to the category rational numbers. Let us see some example. The example could be 2 upon 5. It is a rational number. 0 is a rational number. Why? Because I can write 0 upon 1 also. So it becomes a rational number. If I take 7.6, it is also a rational number because when I remove a decimal, I can write it in the form of 76 by 10. It is a rational number. In fact, non-terminating repeating decimals, let me make myself clear, non-terminating repeating decimals are also rational numbers. Let's take an example, 6.333 and so on. So you can write it as 6.3 के ऊपर बार लगा सकते हो आप. इसके ऊपर बार लगा दिया, 6.3 बार, दैट इज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी 3 बार रिपीट हो रहा है. तो ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. आई होप अब आपको रैशनल नंबर्स में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव नाउ टू इरैशनल नंबर, क्योंकि मैंने बोला रियल नंबर्स दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है रैशनल नंबर और एक है इरैशनल. तो रैशनल अगर हमने सारे नंबर्स को डिस्कस कर लिया, वो तो सारे रैशनल में आ गए. अब इरैशनल में क्या रह गया मैम? मैं बताती हूँ. इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं. दे आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. इसमें हम रूट नंबर्स भी ले लेते हैं, जैसे √2.
अंडर रूट 10, 2.4137 and so on. Non-terminating and non-repeating, they all are called irrational numbers. Value of pi, you always take the value of pi in mathematics as 3.14. आप हमेशा इसको 3.14 लेते हैं बेटा, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू 3.14 नहीं होती है. इसकी एक्चुअल वैल्यू तो बहुत बड़ी है. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बहुत बड़ी वैल्यू है. इसीलिए ये भी इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आता है. तो आई होप अब आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे बिटवीन रियल नंबर्स इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स. So now I have summarized the points of rational numbers. You all can see all the natural numbers, they are rational numbers. All the whole numbers, they are rational numbers. All the integers, negative, positive, they are rational numbers. All the terminating decimals, they are also rational numbers. As well as all the non-terminating repeating decimals, they are also rational numbers. In fact, in place of repeating, you can also find the word recurring. This also means the same. Recurring का भी मतलब है repeating, बार बार आ रहा है एक सीक्वेंस में, तो उनको भी हम रैशनल नंबर्स में डालते हैं. तो आपको समझ आया, सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स, सारे इंटीजर्स, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं. तो अब हम इर्रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में, सो दैट इर्रेशनल नंबर्स भी हमारे क्लियर हो जाए. तो इर्रेशनल नंबर्स वो हो जाते हैं फिर जो P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. We cannot convert them in the form of P upon Q. जिनको हम P upon Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम irrational numbers बोलते हैं. बता देना स्टार्ट करो. So let us see irrational numbers in detail now. ठीक है, उनको हम P upon Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको इर्रेशनल नंबर्स लिखते हैं. तो मैं यहाँ अभी रैशनल नंबर्स रब कर रही हूँ क्योंकि मेरा फोकस किस पर रहने वाला है, इर्रेशनल नंबर्स पर. तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स लिखे हैं. इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं. एग्जाम्पल्स हैं √2, 2.4167, मतलब आप देख रहे हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अंडर रूट वाले जिनके फैक्टर्स, जिनके स्क्वायर्स नहीं होते प्रॉपर, इन सबको हम कैटेगरी में डालते हैं इर्रेशनल नंबर्स की. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, जो प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चंस में आ जाती हैं एग्जाम्स में. तो जब मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करती हूँ, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इर्रेशनल नंबर्स. ध्यान से सुनिए, द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इर्रेशनल नंबर. यानी अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करती हूं तो जरूरी नहीं है कि उसका आंसर इर्रेशनल नंबर ही आए. तो अब इसका एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं कि हाँ भाई ये इस तरह से कैसे होगा. तो लेट अस सी दैट. मैं इसके लिए एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेती हूँ. फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैंने √3 लिया और प्लस किया -√3. वेरी कॉमन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. मैंने √3 लिया और उसमें प्लस किया -√3 को. तो √3 आप सबको पता है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -√3. और √3 -√3 का आंसर क्या आएगा, 0. क्या 0 एक इर्रेशनल नंबर है? नो. आप सबको मैंने अभी बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में कि 0 एक रैशनल नंबर है. तो जब मैं दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करती हूँ तो जरूरी नहीं है हर बार आंसर इर्रेशनल आए, आंसर रैशनल भी आ सकता है. ओके, लेट मी रब इट. अब मैं सेकेंड पॉइंट करती हूँ.
So when we talk about or when we discuss about the second point कहता है the difference of two rational numbers need not be an irrational number. The difference of two rational numbers need not be an irrational number. ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं. डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स. तो मेरे पास एक इर्रेशनल नंबर है 2 प्लस रूट 6. 2 प्लस रूट 6 एक इर्रेशनल नंबर है. दिस इज नंबर 1. और मेरे पास दूसरा नंबर है रूट 6. दूसरा नंबर क्या है मेरे पास? रूट 6. 2 प्लस रूट 6 और दूसरा नंबर है रूट 6. अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूं. डिफरेंस की बात हो रही है सेकंड पॉइंट में. अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो आपको पता है रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव में है और एक वैल्यू नेगेटिव में. आपका आंसर क्या आ गया? 2. तो आपको पता है 2 एक रैशनल नंबर है, तो आपका आंसर आता है 2. इज इट क्लियर? तो आई थिंक सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया आपको. So let us see the third point now. Now the third point says that the product of two irrational numbers need not be an irrational number. यानी अगर मैं दो irrational numbers को multiply करती हूँ तो मेरा आंसर irrational number आए ये जरूरी नहीं है. तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसका भी. रूट 5 को अगर मैं रूट 5 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर्स हैं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. जब मैं दो रूट्स को मल्टीप्लाई करती हूँ ना बेटा, और सेम रूट्स होते हैं दोनों, तो इसका आंसर आता है 5. क्या आंसर आता है? 5. अब मैं बताती हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ये बहुत आगे भी रैशनलाइजेशन में आपके काम आएगा. देखिए, अगर मैं 2 की बात करती हूँ, कोई भी नंबर ले लो. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया है 2. एक्चुअली 2 हाफ 2 से बना हुआ है, आधे 2. और आधे 2 यानी हाफ 2 को लिखने का मतलब होता है रूट 2 एंड रूट 2. जब मैं दो रूट 2 को मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे मिलता है, ठीक है, हाफ. किससे बना? हाफ रूट 2. अब ये हाफ को और समझना चाहोगे अगर आप, तो अंडर रूट का मतलब होता है 2 की पावर 1/2. क्या मतलब होता है अंडर रूट का? 2 की पावर 1/2. तो एक अंडर रूट के लिए 2 की पावर 1/2 प्लस दूसरे अंडर रूट के लिए 1/2. अब जब आप इसका एलसीएम लेकर इसका आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, जिसका मतलब होता है 2. तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इस एग्जाम्पल के बेसिस पर कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स जो सेम है अगर उनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक रैशनल नंबर बनकर आता है. ठीक है, एक रैशनल नंबर बनकर आता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट सेज अगर मैं दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करूं, तो इट इज नीड नॉट नेसेसरी दैट द आंसर इज इरेशनल अगेन. यानी दो इरेशनल को डिवाइड करूं तो मेरा इरेशनल आंसर आए? नो, ऐसा भी जरूरी नहीं है. फिर से वही ले लिया मैंने, दो इरेशनल नंबर्स. फिर एग्जांपल रूट 5 ही ले रही हूं और रूट 5 दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों सेम है बेटा. कट कर क्या आ जाएगा आंसर? 1. तो 1 क्या इरेशनल नंबर है? नो, 1 एक रैशनल नंबर है. तो इसके लिए आप जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल लेना है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो और आपको यही आंसर मिलेगा. इनफैक्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 2 रूट 7 और रूट 7 है. कट कर दो, रूट 7 से रूट 7 कट हो गया, क्या बच रहा है? 2 बच रहा है. तो 2 क्या है? एक रैशनल नंबर. तो डिवीजन में भी पॉसिबिलिटी है कि आपको रैशनल भी मिले और इरेशनल भी मिले. तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं इरेशनल नंबर्स की. आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड. मैं इसको रब कर रही हूं आगे. अब हम देखते हैं, नाउ लेट अस सी द 5th पॉइंट. अब हम 5th पॉइंट देखते हैं. देखिए, अभी तक 4 पॉइंट्स में मैंने आपको समझाया कि अगर इरेशनल नंबर्स को सम करें, डिफरेंस लें, उनका प्रोडक्ट निकालें या उनको डिवाइड करें, तो नीड नॉट बी अ रैशनल नंबर. यानी जरूरी नहीं है कि आंसर इरेशनल आए, आंसर रैशनल भी आ सकता है. लेकिन अब जो मैं पॉइंट्स ले रही हूं वो रैशनल और इरेशनल दोनों के साथ ले रही हूं. यानी अगर मैं एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ
ऐड करती हूँ, लाइक द सम ऑफ अ रैशनल एंड अ इर्रेशनल नंबर, तो इसका आंसर हमेशा ही इर्रेशनल आएगा। ऑलवेज इज ऑलवेज आ इर्रेशनल नंबर। यानी मैंने एक रैशनल नंबर लिया और उसको एक इर्रेशनल नंबर के साथ ऐड किया, तो मेरा आंसर 2 + √5 ही बनेगा। मैं इसको फर्दर सॉल्व कर ही नहीं सकती। और 2 + √5 एक इर्रेशनल नंबर है। यानी आप कभी भी एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर को ऐड कीजिए, आपका आंसर एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट। सेम थिंग, द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड अ इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। ऑलवेज, वहां था नीड नॉट, यहां था है ऑलवेज इर्रेशनल। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। 6 - √7 नंबर है आपका रैशनल 6 और इर्रेशनल नंबर है √7। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 - √7। आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू लीव इट हियर ओनली। और आपका आंसर क्या है? 6 - √7, जिसको हम एक इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा 7th पॉइंट लेते हैं। ठीक है, मैं इन दोनों को रब कर देती हूँ सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। 7th भी बिल्कुल इसी तरह से जाएंगे। यानी यहां पर हम एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी आप एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, एवरी टाइम द आंसर इज इर्रेशनल नंबर, ऑलवेज इर्रेशनल। तो कैसे आएगा? देखो, आपने मल्टीप्लाई किया 3 को √3 से। 3 इज अ रैशनल नंबर, √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 3√3। और ये 3√3 आपका क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करती हूं तो भी मेरा आंसर एक इर्रेशनल नंबर ही आता है। कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लिया यहां पर 9 डिवाइडेड बाय √2। 9 डिवाइडेड बाय √2, तो मैंने यहां पर लिया 9/√2। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है इसको रैशनलाइज करना, जो मैं अगले लिंक में बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं। अगले वीडियो में बताऊंगी कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे किया जाता है। लेकिन 9/√2, जब मुझे पता है √2 सॉल्व नहीं हो सकता, √2 एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो मैं बोलूंगी कि ये एक इर्रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप किसी इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो, आपको हमेशा आंसर इर्रेशनल ही मिलेगा। क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत हेल्पफुल होती हैं जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। So now if you have understood the concept and the difference between rational and irrational numbers, let us do this question and make ourselves more clearer. Examine whether the following are rational or irrational. मैंने 4 questions लिखे हैं यहाँ पर। First of all, A part says √36. √36 को हमें ये देखना है क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल सकता है? Yes, we know कि √36 6 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं √36 को चाहूं तो ऐसे भी लिख सकती हूँ 6 × 6। 2 6 है, एक 6 कॉमन बाहर आ जाएगा, आंसर आ गया 6। 6 क्या है? रैशनल या इर्रेशनल? 6 है, यू ऑल आर राइट। 6 एक रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या है? रैशनल। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट कहता है √5 + √3। अब देखो, आपको याद है मैंने कहा था जब दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, नीड नॉट बी एन इर्रेशनल नंबर, यही बोला था ना। तो यानी इर्रेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, नीड नॉट बी, है ना। तो यहाँ पर √5 और √3 ऐड हो ही नहीं पाएंगे। इसको एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा √5 + √3। और आप जब इसको ऐसे लिखते हैं √5 + √3, तो ये एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? इर्रेशनल। तो मैंने वहां एग्जाम्पल दिया था उसको रैशनल बनाने का, और यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया इर्रेशनल का। ठीक है, अब आपको समझ आया नीड नॉट बी का
मतलब क्या होता है कि उसका आंसर इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट पर आते हैं। अंडर रूट 0.9। अब अगर अंडर रूट 0.9 है बेटा, तो आप अगर डेसिमल हटाते हैं तो 10 नीचे आ जाता है, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू बन गई 9/10। आप 9 को तोड़ सकते हैं 3 × 3, और आप 10 को तोड़ सकते हैं, यू कैन ब्रेक इट 2 × 5, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन 3 × 3 का तो पेयर बन गया, एक 3 बाहर आ जाएगा, पर 2 और 5 कॉमन नहीं है, पेयर नहीं बनेगा। आपका आंसर आएगा 3/10। आपको याद है मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया था। और रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय एन इरैशनल नंबर, और आंसर क्या आएगा इसका हमेशा? इरैशनल। ये क्या है? एक इरैशनल नंबर है। देख रहे हैं ना आप किस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पर बेटा। अब जब मैं लास्ट पार्ट की बात करती हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट 3√8/√2, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे? आप √8 के फैक्टर्स निकालें। 2 × 2 × 2 यही होते हैं। यहां पर आ गया √2, एक √2 से कट गया, एक √2 से कट गया। आपका आंसर बना 3√4। अपॉन में कुछ नहीं रह गया, 1। √4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो यानी यहाँ पर ये यही देख लो, ये 2 2 है, एक 2 बाहर आ गया, ये हो गया 3 × 2। आंसर क्या आया? 6। 6 क्या होता है? रैशनल नंबर। तो दिस इज द वे आप अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरैशनल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आई होप इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो यू डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजंट इट इजी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मैथ्स और साइंस दोनों के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी कि आप कभी भी नहीं